नमस्ते, गुड मॉर्निंग। आज के 14th डे में of our 21 days Surya Namaskar challenge. I welcome all of you. Today we have a few new participants also, जिन्होंने last 10 days का challenge लिया हुआ है, जिन्होंने पहले मिस कर दिया था, उन सभी का भी welcome. So friends, adjust yourself in any meditative posture. कमर गर्दन सीधी रखेंगे. Hands nicely resting on your thighs. धीरे से आंखों को बंद करेंगे. चेहरे पे हल्की सी मुस्कान. Focus on your breathing. धीरे धीरे मन को शांत होता हुआ महसूस करेंगे. एक 3 ओमकार along with deep breathing. Breathing. नमस्ते में आत्मांजलि मुद्रा. आज हम संगठन प्रार्थना से शुरुआत करेंगे. ॐ संगच्छत्वं संवदत्वं संभो मनांसि जानता देवा भागं यथा पूर्वे संजानान उपासते. ॐ शांति शांति शांति. संगठन में बहुत ताकत है. साथ में मिलकर हम सब अपना सारा कार्य पूर्ण करेंगे. हमने जो 21 दिन का संकल्प लिया है उसको पूर्ण करेंगे. एक दूसरे को मोटिवेट करते रहेंगे और देवों की भांति पूजनीय काम करेंगे. ओम शांति शांति. दोनों हाथों को रब करेंगे. Rub your palms nicely, gently, and making a cup of your hands. Warm up your eyes slowly. Take a deep breath. धीरे से चेहरे पे घुमाते हुए nicely on the entire body. पहली दृष्टि जमीन पे पड़े ऐसे हमेशा नजरें खोलेंगे. Slowly look to your left. A little bit of push on your chest. Breathe into the center. Breathe out to your right. थोड़ा सा push करेंगे. Breathe into the center. Breathe out. Left. Breathe in center. Breathe out. Right. Breathe in center. Breathe out on your left side down. Breathe in center.
Breathe out, right side down. Breathe in center. Breathe out, left side down. धीरे से थोड़ा सा push करेंगे. Breathe in center. Breathe out, right. थोड़ा सा push करेंगे. धीरे से center. Breathe in. Breathe out, down. ऊपर से नीचे थोड़ा सा push करेंगे. Breathe in. ऊपर पूरा 3 बार खुद बंद करेंगे. आ आ आ. The center, एक full circle लेंगे from the very bottom. Circle breathing. Circle breathe out. And one reverse. एकदम आराम से धीरे धीरे, कोई जल्दी नहीं है. And slowly, let's stand up. Let's get ready for our warm-ups. Stretch your arms up. थोड़ा सा ऊपर खींचे, 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 धीरे से. Raise your heels up on your toes. Hold on. 1, 2, 3, 4. दृष्टि को एक जगह पे फिक्स करके रखेंगे. 5, 6. हाथों को कानों के पीछे ले जाने की कोशिश करेंगे. 7, 8, 9 and 10. Release. दोनों पैर थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे. Little bit of movement. Once again, raise yourself. ऊपर थोड़ा सा stretching. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. And release. Release करेंगे slowly. A little bit of distance between both the legs. Toes pointing inwards. Hands on your waist. And let's twist. 1, 2, 3, 4, 5. Into the center. 1, 2, 3, 4, 5. एक और बार. 1, 2, 3, 4, 5. Breathe in. 1, 2, 3, 4, 5. Breathe into the center and then side twist. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. दोनों पैरों को ज्वाइन करके स्लोली फुल रोटेशन. पूरा कमर को घुमाएंगे. हिप ट्विस्ट रोटेशन. 1, 2. पेट आगे आएगा. वहां पे थोड़ा सा ब्रीद इन. पीछे ब्रीद आउट. ट्राई टू पुट योर हैंड्स ऑन योर बैक टू गिव अ नाइस पुश. Reverse. 5, 4, 3, 2, 1. Slowly bend from the knees a little bit and knee rotation. 1, 2, 3, 4, 5. Reverse. 5, 4, 3, 2, 1. And let's come to the beginning of the mat. Let's get ready for our Surya Namaskar. Say at the beginning of your mat. Hands in Namaste. आंखें बंद. Breathe out. मेंटली अपने आप को पहले रेडी करना है. माइंड से आपको पूरा सूर्य नमस्कार को विजुअलाइज करना है. उसके बाद जब आप उसको करोगे तो वो एकदम परफेक्शन के साथ आपका होगा. ओम मित्राय नमः. Breathe in. Stretch up. Hasta Uttanasana.
स्लोली हाथों को नमस्ते में लेके धीरे से थोड़ा सा नीज को बेंड करेंगे और नाइस पेट को थोड़ा सा अंदर की ओर खींचना है। Going into Hastapadasana. Right leg goes back nicely and slowly. Right hand on the floor, left hand up. Say into a plank, knees chin chest to the floor, tongue up to bhujam. Slowly. Parvatasana. Right leg comes back, looking up to the sky. आराम से कर रहे हैं, सांसों पे concentrate करेंगे. Left leg comes back, सांस लेते हुए ऊपर, Uttanasana and long deep breath. Om Suryaya Namaha. Breathe in. Namaste. Uttanasana. Nicely enjoy the posture and slowly Hastpadasana. धीरे से left leg goes backwards, left hand on the floor, right हाथ को ऊपर पूरा अच्छे से twist करते हुए, slowly coming back, going into a plank, knees chin chest to the floor, coming up to Bhujan, Parvatasana. Let's hold on. 1, 2, 3, 4, 5. Left leg comes in between your hands, looking up to the sky. Right leg comes in between your hands. सांस लेते हुए अच्छे से Hastpadasana and breathe out. Om Tadai Namaha. Breathe in. Uttanasana. Namaskar. Utkatasana. Check your posture. knees पे weight मत डालिएगा. अगर knees में problem है, नहीं कर सकते हैं तो उसको skip कर दीजिएगा. Right leg goes backwards. Right hand firmly on the ground. Left हाथ ऊपर अच्छे से खींचिए. And going into a plank. Hold on over here. Knees chin chest to the floor. To Bhujan. Slowly going to Parvatasana. 1, 2, 3, 4, 5. Right leg comes in between your hands, looking up to the sky. Left leg comes in between your hands. सांस लेते हुए Uttanasana and Samasthiti. Breathe in, breathe out. Om Hiranyagarbhaya Namaha. Breathe in. Uttanasana. Namaskar. Utkatasana. Going to Hastpadasana. Left leg goes back. Left hand on the floor. Right hand up. Nicely. अच्छे से खींचे. धीरे से वापस into a plank. Knees chin chest to the floor. Up to Bhujan. Slowly coming into Parvatasana. Hold on. 1, 2, 3, 4, 5. Left leg comes in between your hands into a Swasanchalan. Right leg comes forward. लेते हुए Uttanasana and Samasthiti. Breathe out. Om Adityaya Namaha. Breathe in Uttanasana. Namaskar. Utkatasana. धीरे से Hastpadasana. Right leg goes back. Right hand on the floor. Left hand up. Coming back into plank. Knees chin chest to the floor. Namaskar. Slide up to Bhujan.
Going back to Parvatasana. Hold on. 1, 2, 3, 4, 5. Right leg comes in between your hands. Left leg comes forward. Translate your way over and long deep breath. Om Bhaskaraaya Namaha. Breathe in. Hasuttanasana. Join your arms in Namaste. Bending to Uttadasana. Needlessly Hastapadasana. Left leg goes back, looking up to the sky. Firmly place your left hand down, right up, going into a plank. Knees chin chest to the floor, up to Bhujam. Parvatasana. 1, 2, 3, 4, 5. Left leg comes forward, right comes forward. Translate the way over and namaste. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. Om Rave Namaha. Breathe in. Hasuttanasana. Namaskar. Utkatasana. Right leg goes back. Right hand on the floor. Left hand up. Say, going into a plank. Knees chin chest to the floor. Up to Bhujangasana. Slowly coming to Parvatasana. Hold on to 3, 4, 5. The right leg comes forward, looking up to the sky. Left leg comes forward. Translate over and breathe out. Om Bhagave Namaha. Breathe in. Hasuttanasana. Namaskar. Utkatasana. Needlessly down. Left leg goes back into Asvasanchalan. Left hand on the floor. Right hand up. पूरा अच्छे से twist करेंगे. धीरे से going into a plank. Knees chin chest to the floor. Up to Bhujan. Into downward facing dog. 1, 2, 3, 4, 5. Left leg comes forward. Asvasanchalan. Right leg comes forward. Hastapadasana. Translate over and long deep breath. अगर किसी को यहाँ पे ब्रेक चाहिए, water break, so just have a break. We have completed our 8 and get ready for the next 8. Shital, are you ready? Can you please unmute yourself? I'm ready. Yes. Okay. So let's just see if everyone is ready. Okay, yeah. So you can start. Om Mitraya Namaha. Hands up in the air, arch your back. Exhaling, inhaling, right foot back. Exhaling, left foot back. Plank, knees, chest, chin to the floor. Ashtanga Namaskar. Inhale, roll up to Bhujan. Exhaling, Adho Mukha Svanasana. Inhaling, right foot in between the hands. Exhaling, left foot joining right foot. Inhaling, roll up. Exhaling, sit back. Om Suryaya Namaha. Inhaling, hands arch back.
Exhale, touch the toes. Inhale, left foot back, look in front. Exhale, right foot back, plank. Suspend your breath, knees stretched into the floor. Ashtanga Namaskar. Inhale, you roll up to Bhujanga. Exhaling, Adho Mukha Swasan. Inhaling, left foot in front. Look up. Exhaling, right foot. Inhaling, roll up to Hasta Uttan. Exhaling, Siddha Pranasana. Inhaling, Om Bhagavate Namaha. Inhaling, raise your hands at your back. Exhaling, touch the toes. Inhaling, right foot back, look in front. Exhaling, plank. Knees stretched into the floor. Inhaling, roll up to Bhujanga. Adho Mukha Swasan. Inhaling, right foot in front. Exhaling, left foot in front. Inhaling, roll up. Exhaling, hands in Siddha Pranasana. Om Hiranye Garbhaya Namaha. Inhale, hands up, arch your back. Exhaling, touch the toes. Inhaling, left foot back, look in front. Exhaling, right foot back. Knees stretched into the floor, suspend your breath. Inhale, roll up to Bhujanga. Exhaling, Adho Mukha Swasan. Inhaling, left foot in front. Exhaling, right foot. Inhaling, roll up to Hasta Uttan. Exhaling, Siddha Pranasana. Om Adityaya Namaha. Inhale, raise your hand, arch your back. Exhaling, touch the toes. Inhaling, right foot back, look in front. Exhaling, left foot back, plank. Knees stretched into the floor. Inhale, roll up to Bhujanga. Exhale, Adho Mukha Swasan. Inhaling, left foot in front. Exhale, right foot in front. Inhaling, roll up to Hasta Uttan. Exhaling, Siddha Pranasana. Om Hastaraya Namaha. Inhaling, arch your back. Exhaling, touch the toes. Inhaling, right foot back. Exhaling, left foot back, plank. Knees stretched into the floor. Inhaling, roll up to Bhujanga. Exhaling, Adho Mukha Swasan. Inhale, left foot in front. Exhale, right foot in front. Inhaling, roll up. Exhaling, Siddha Pranasana. Om Ravaye Namaha. Inhaling, raise your hands. Exhaling, touch your toes. Inhaling, right foot back. Exhaling, left foot back, plank. Knees stretched into the floor. Roll up to Bhujanga. Exhaling, Adho Mukha Swasan. Inhaling, right foot front. Exhaling, left foot front. Inhaling, roll up to Hasta Uttan. Exhaling, Siddha Pranasana. Om Bhanave Namaha. Inhale, raise your hands. Arch your back and touch the toes. Inhaling, left foot back, look in front. Exhaling, right foot back, plank. Knees stretched into the floor. Roll up to Bhujanga. Exhaling, downward facing dog. Inhaling, left foot front, look in front. Exhaling, join the right foot. Inhaling, raise your arms, arch your back and Siddha Pranasana. Okay, Peter? Yes, dear. Thank you. Can you please mute yourself? Let's do the jumping one. जिसका नहीं होता है वो लोग प्लीज go according to your pace. So let's join our hands. Take a deep breath. Om Pushne Namaha.
breathe in and up, breathe out. Hastapadasana. Firmly place your hands and jump into a plank. Knees chin chest to the floor. To Bhujanga. Coming into a downward facing dog. Jump back in between your hands. लेते हुए ऊपर and Om Maiche Namaha. Breathe in, raise your arms up, breathe out. Hastapadasana. अच्छे से firmly place your hands and jump into a plank. Knees chin chest to the floor. Up to Bhujanga. Into Parvatasana. Jump back in between your hands. सांस लेते हुए हस्तोत्तरासन. Om Adhikaya Namaha. Breathe in, stretch up, breathe out, down, jump back, knees chin chest to the floor, up to Bhujanga. Coming into a downward facing dog, jump back, Om Savitri Namaha. Breathe in, Hastuttanasana. Breathe out, Hastapadasana. Plank, knees chin chest to the floor. Coming up to Bhujanga. Downward facing dog. Jump back, breathing out into Samasthiti. 3 long deep breaths. And the last one with the hold. Breathe in, breathe out. Om Mitrai Namaha. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Breathe in up. Hastuttanasana. Om Suryaya Namaha. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Uttatasana. Hold on. Om Khagaya Namaha. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Breathe out, down. Ashtapadasana. Om Hiranyagarbhaya Namaha. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Right leg goes back. Sanchalan. Om Adityaya Namaha. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Left leg goes back into a plank. Hold on. Om Bhaskaraya Namaha. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Knees, chin, chest to the floor. Namaskar. Om Rave Namaha. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Now, Om Bharave Namaha. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Coming into downward facing dog. Say Om Shne
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Right leg comes in between your hands, looking up to the sky. Om Mariche Namaha. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Left leg comes in between your hands. Hold on. Om Mariche Namaha. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. सांस लेते हुए ऊपर सुप्तासन. Om Savitri Namaha. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Om Savitru Surya Narayanaय Namaha. थोड़ा सा आगे झुकेंगे. 1, 2, 3, 4, 5. सूर्य देवता के सामने शीश झुका रहे हैं ऐसी अनुभूति के साथ. 7, 8, 9, and 10. Breathing up, Samastiti, and let's sit down and go into Savasana. So congratulations, we have completed the 13th day very successfully, and we deserve a nice, beautiful Savasana. Lie down on your mats, comfortable, releasing all the stress, all the tension on the floor. Just breathe in and breathe out. जिनको फ्लैट लेटने में प्रॉब्लम है, फ्लैट करके भी लेट सकते हैं. जिनको लेटने में प्रॉब्लम हो या लेटने के लिए स्पेस ना हो, वो बैठ के भी शवासन ले सकते हैं. शवासन मतलब सौ जैसा आसन, सौ है डेड बॉडी. Also called the corpse pose. A dead body will not move under any situation. चाहे मक्खी आए, चाहे मच्छर आए, चाहे भूकंप आए, चाहे फ्लड आए, चाहे बारिश आए. Nothing can affect a dead body unless and until someone comes and moves it. और किसी के मूव करने पे भी डेड बॉडी को कोई असर नहीं होता है. So just make your body like a body. पूरा जमीन पे ढीला छोड़ दीजिए. पूरा firmly down, grounded. अब चाहकर भी अपने हाथ पैर में नहीं लगाए, ऐसे. Visualize your body as an external entity. आप किसी और का बॉडी देख रहे हैं, वैसे आपको अपना बॉडी देखना
बैठ के देख रहे हैं. Look at your toes. Relax your toes. Relax your heels. Relax your ankles. Relax your shin, your calf muscles, knees, hamstrings, your quadricep muscles. Relax, relax your entire legs. All the organs inside the stomach. Relaxing your chest, your heart. Listen to your heartbeat. Talk with your heart. Listen what your heart is saying. It is very happy, very energetic because you completed the Surya Namaskar. It makes your heart very healthy. Bring your focus to your arms, to your wrists, to your fingers, to your palms. Relaxing your hands, elbows, your shoulders, your arms. Fully relax. Relaxing your neck muscles, your facial muscles. Relaxing your eyes, your nose, your ears, your cheeks, chin, lips. Relax the tongue inside your mouth, resting it on the upper palate. Relax your eyeballs inside your eyes. Release all the wrinkles from your face. With a gentle smile. Slowly coming back to your body, आंखें बंद रखते हुए wiggle your hands and your legs, हाथों की उंगलियों को पैरों की उंगलियों को थोड़ा सा मूवमेंट देंगे, हाथों को थोड़ा सा हिलाएंगे, अच्छे से interlock your hands above your head and stretch up, हाथ ऊपर की ओर, पैर नीचे की ओर, अच्छे से stretch कीजिए in Yastikasana, nice, nice, stretch nice, slowly release. By stretching up and stretching down nicely. Extend your spine. अच्छे से. Hug your legs and roll from side to side. Stay in this position. We'll check one ओंकार पैर ऐसे ही अच्छे से squeeze करके रखेंगे लंबी गहरी सांस लेंगे. Hands into the and let's twist our legs on the left side, on the right side, and enjoy the twist. Shoulders relax, palms firmly placed on the ground. अच्छे से nicely. Just stay where you are and twist on the other side.
Enjoying your twist nicely. Coming to the center. One hand on your stomach and let's do a little bit of deep breathing. Breathe in and breathe out. Remember, सांस लेंगे तो पेट फूलेगा और सांस छोड़ेंगे वहां पे पेट अंदर जाएगा. आराम से ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट, आंखें बंद रखते हुए. Focus on your breathing along with the counting. जितना काउंट आपको कंफर्टेबल लगता है. It could be 3 counts, it could be 5 counts. सांस लेंगे तो पेट फूलेगा और सांस छोड़ेंगे तो पेट अंदर की ओर स्क्वीज होगा. No jerky movements, just gentle breathing and gentle breathe out. Breathe in, 1, 2, 3. Breathe out, 3, 2, 1. Breathe in, 1, 2, 3. Breathe out, 3, 2, 1. Breathe in, 1, 2, 3. Breathe out, 3, 2, 1. Breathe in, 1, 2, 3. Breathe out, 3, 2, 1. Slowly continue with your breath. And धीरे से turn to your left side, resting in child position. Squeeze yourself as much as possible and taking the support of your hands, come into sitting position. Let's take the prayer. आंखें बंद रख सके तब तक बंद ही रखें, आंखें खोलने की कोई जरूरत नहीं है. जितनी देर आंखें बंद रख के करोगे उतना ज्यादा आप अपने अंदर डूबते जाएंगे. Take a deep breath. 3 भ्रामरी लेंगे, आंखों को कानों को कवर करके मुंह बंद रख के 3 ओंकार. Hands in Namaste. गायत्री मंत्र लेंगे.
ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। धीरे से एक हाथ से दूसरी हथेली को कमर के पीछे होल्ड करके पीछे की ओर शोल्डर्स को खींचना है, कमर को पीछे की ओर पूरा स्ट्रेच करेंगे नाइसली एंड टेक अ डीप ब्रेथ एंड सांस छोड़ते हुए आगे की ओर झुकेंगे आराम से धीरे से, जहां तक आप जा सके कोई जोर जबरदस्ती नहीं करना है, जहां तक जा सके वहां तक पहुंचने के बाद गर्दन को एकदम ढीला छोड़ देंगे, अपने आप को भूमाता के चरणों में, परमपिता परमेश्वर के चरणों में समर्पित कर देंगे। लंबी गहरी सांस लेते हुए ऊपर आएंगे, धीरे से रब योर palms and warm up your eyes। हथेलियों के अंदर ही आंखों को धीरे धीरे थोड़ा सा खोल बंद करेंगे। Blink your eyes inside your palms. Slowly slide your hands down, spreading the energy on the entire body। पहली दृष्टि जमीन पे पड़े, ऐसे नजरें खोलेंगे, धीरे से सामने देखेंगे। So, hello everyone, namaste, and let's take the चित्कारी। चित्कारी के लिए 4 fingers like this, ऐसे पूरा मुंह के अंदर जाएगा। Breathe in, चित्कारी। चित्कारी और शितकारी दोनों प्राणायाम बहुत ही लाभदायक है, एकदम सिंपल है, करने में बहुत सिंपल लगता है, लेकिन इतने अच्छे उसके इतने सारे फायदे हैं। We do have Dr. Malti Shah who is going to join us. Let me see if I can find her. डॉक्टर मालती शाह, आप हमारे साथ अगर ज्वाइन हो चुके हैं तो प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट करके आगे थोड़ा सा बोलिए, ताकि वी नो दैट यू आर विथ अस। I think friends is just on her way, she is coming. So in the meanwhile, let's have a nice अनुलोम विलोम प्राणायाम, आराम से रिलैक्सिंग बहुत अच्छा होता है। तो वो जब भी आते हैं तो अभी she is just on our way, so she'll be able to join us. Till then we can take the अनुलोम विलोम nicely. Vishnu Mudra, starting from your right, breathe in through the right, काउंट के साथ जाएंगे, इक्वल काउंट ले रहे हैं, 3 काउंट्स ब्रीथ इन, 3 काउंट्स होल्ड एंड 3 काउंट्स ब्रीथ आउट। ज्यादा हम कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे। 1 2 3 होल्ड, 1 2 3 breathe out from your left, 3 2 1 breathe in from the left, 1 2 3 hold, 1 2 3 breathe out from the right, 3 2 1 breathe in from the right, 1 2 3 hold, 1 2 3 breathe out from the left, 1 2 3 breathe in from the left, 1 2 3 hold, 1 2 3 breathe out from the right, 3 2 1 breathe in from the right, 1 2
3, hold, 1, 2, 3, breathe out from the left, 3, 2, 1, breathe in from the left, 1, 2, 3, hold, 1, 2, 3, breathe out from the right, 3, 2, 1. Continue with the same sequence. जैसे मैंने बोलना बंद किया सबका रुक गया. रुकना नहीं है, आपको अभी ये काउंटिंग आपके माइंड में करते हुए कंटिन्यू करना है. और ध्यान रहे कि बिल्कुल भी जबरदस्ती नहीं करनी है. आई जस्ट वांटेड टू गिव यू द इंस्ट्रक्शंस, दैट इज व्हाई मैंने अपना ये काउंटिंग बंद किया है. ये काउंटिंग आपको अपने माइंड में कंटिन्यू करते हुए करना है. और अनुलोम विलोम या कोई भी प्राणायाम जो हम ले रहे हैं उसको फोर्सफुल इनहेलेशन मत कीजिए. कई लोग ऐसे कर रहे हैं. ये रिलैक्सिंग ब्रेथ नहीं है. आराम से, इतना आराम से कि आपकी बॉडी में कहीं पे कोई मूवमेंट हो ही नहीं रहा है. जर्की ब्रेथ नहीं लेना है. एकदम स्मूथ ब्रेथ होना चाहिए. आराम से ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट. अगर आपके हाथ नहीं है, हाथ हटा दे तो बाजू में किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि आप प्राणायाम कर रहे हैं. सो मेक श्योर कि बिल्कुल भी जर्की ब्रेथ नहीं हो. एकदम आराम से धीरे धीरे करेंगे. So you continue with the pranayam while I'll just check back if we have our guest over here. काउंटिंग के साथ कीजिएगा फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट होता है. काउंटिंग का बेनिफिट मैं आपको बाद में बताऊंगी. सो कंटिन्यू विद द काउंटिंग. कंटिन्यू विथ योर ब्रीदिंग. एक्चुअली थोड़ा सा उनको टाइमिंग का गड़बड़ हो गया है. सी हैड अ लिटिल बिट ऑफ confusion, but she is just joining. I just checked her with her. तो वो ज्वाइन कर रहे हैं. वो आते हैं तब तक हम अपना अनुलोम विलोम कंटिन्यू करते हैं. अनुलोम विलोम प्राणायाम is a very nice equal and balancing breath. आपके दोनों लेफ्ट और राइट साइड के बीच का जो बैलेंस है, हमारे शरीर के जो पंच तत्व का बैलेंसिंग है, वो बहुत अच्छे से अनुलोम विलोम के साथ होता है. And while Dr. Maltisha is over here, yes, we do see you, Malti ji. Welcome. Please unmute yourself.
मालती जी आपका अनम्यूट करके कैन यू प्लीज से हेलो। आपका वीडियो तो ऑफ हो गया है। हमारे साथ उषा जी भी यहाँ पे है। सो लेट्स वेलकम आवर इंटरनेशनल डायरेक्टर उषा जी विद अस ओवर हियर। वेलकम उषा जी। आज Yes, आप हमारे साथ हमारे सूर्य नमस्कार चैलेंज में हमारे साथ जुड़े हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके थोड़े से ब्लेसिंग्स हमारे लिए आप दीजिए प्लीज। जरूर जरूर। हमारे ब्लेसिंग्स हमेशा आपके साथ ही है और आप बहुत अच्छा कार्य कर रही है। 21 सूर्य नमस्कार 21 दिन कंटिन्यूस चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद और सभी पार्टिसिपेट को भी मैं बहुत बहुत कांग्रेट्स करती हूँ। सच में वैसे तो कहते हैं कि ऊपर बैठा इंसान हमारी सांसें गिन रहा है, हम धरती पर बैठे इंसान हमारी प्रॉपर्टी गिन रहे हैं। आज इतनी हुई, कल इतनी ज्यादा बढ़ गई, आज इतनी थी, आज इधर ले ली तो और बढ़ गई और खुश होते हैं। और ऊपर बैठा इंसान भगवान तो वो गिनता है, अपनी सांसें गिनता है कि आज इतनी थी और कल इतनी कम हो गई। सच है ना? इसी ऐसे टाइम में और ऐसी सोच हम रखते हैं, तब आपने ये जो सूर्य नमस्कार का जो इतना अच्छा प्रोग्राम किया है तो मैं बहुत बहुत अभिनंदन देती हूँ। और हमारी सांसों पर कंट्रोल करना, ये सब आप अच्छी तरह, बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन करते हैं, आराम से। बहुत अच्छा, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। गुरुजी को भी वंदन और शिष्यों को भी वंदन, सबको वंदन। बस सब मस्त रहे, तंदुरुस्त रहे और व्यस्त रहे और अच्छे अच्छे कार्य करते रहे, ऐसी ही मेरी शुभकामना है आप सबके लिए। थैंक यू वेरी मच उषा जी। आज आप हमारे साथ जुड़े हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है और हम बस यही इच्छा करते हैं कि आप भी हमारे साथ हर रोज जुड़ते रहे और हर रोज सूर्य नमस्कार भी करें आप हमारे साथ, और आपके ब्लेसिंग्स हमें हमेशा ऐसे ही मिलते रहे। सो yes, we do have Malti ji, but she has some problem with the connection while she is over here on her way. Friends, मैं आपको उनके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। डॉक्टर मालती शाह जो है वो एक बहुत सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट है, बहुत सारा एक्सपीरियंस उनका पास खुद का है, और उसके अलावा शी इज हरसेल्फ अ ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर। तो उन्होंने खुद ये पूरा एक्सपीरियंस किया हुआ है, और कैसे हुआ क्या हुआ तो वो हम उनके ही मुंह से जब सुनेंगे तो बहुत हमें ज्यादा नॉलेज मिलेगा। और इसके अलावा मतलब यू वुड बी हैविंग अ गायनेकोलॉजिस्ट जो आपको सारी गाइडेंस देंगे, यू वुड बी हैविंग अ लाइक कैंसर सर्वाइवर जो आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। लेकिन मालती जी जो हमारे साथ है वो दोनों 2 in 1 है, और उनके पास से जब हम ये सारी चीजें जानेंगे तो ज्यादा अवेयरनेस आ सकती है। सो इसीलिए मैंने उनको खास ब्रेस्ट कैंसर के लिए रिक्वेस्ट किया था कि आप वो टॉपिक पे ही हमें थोड़ा सा गाइडेंस कीजिए। सो यस, आई थिंक उनका कनेक्शन का प्रॉब्लम थोड़ा ज्यादा हो रहा है, बट आई थिंक दैट्स फाइन। हमारे पास टाइम है, उतना टाइम हम अनुलोम विलोम कर सकते हैं। तो आपके हाथ सबके नीचे आ क्यों आ गए? सुनते हुए आराम से करते हुए सुनेंगे तो भी चलेगा ना, हाथ तुरंत नीचे ही आ जाते हैं। तो ट्राई के अनुलोम विलोम जितना ज्यादा ट्राइपॉड पतुम फोन देख दाखिव हालांड है ना पूरा पेंडिंग। सॉरी, किसी ने कुछ कहा आई थिंक। मालती जी हमारे सूरत के बहुत ही सीनियर गायनिक हैं।
Yes, we do have Dr. Malti Shah over here. Malti ji, welcome. Hello. Yes, yes, ma'am. Welcome. I cannot see you. You can hear me? Yes, I can hear you. I can hear you very clearly. आपका वीडियो नहीं, हाँ आपका वीडियो भी आई थिंक स्टार्ट हुआ है. Yes. Okay. I'm very sorry, Nital. नहीं I नहीं. was It's under a pleasure. Please, ma'am, please don't say sorry. It's technical. I things. was under impression that your Uh, program will start at 8 o'clock. okay. So there is some discomfort. I'm हाँ. very sorry for that. No, that's perfectly okay. आप अपना टाइम निकाल के नहीं, लिए हमारे नहीं। लिए आए, वही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है. तो हमने आपका ऑलरेडी इंट्रोडक्शन करवा दिया है हमारे फ्रेंड्स को that you are like best person to guide us about breast cancer. So please मैम आपका जो ब्रेस्ट कैंसर के बारे में आप हमारे जो मेरी सारी सूर्य नमस्कार पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए Yes. कुछ आप स्पेशल मैसेज दीजिए. आपका वीडियो वापस से ऑफ हो गया है, बट वी कैन हियर यू. यस, परफेक्ट. Yes. पहले तो मैं मित्तल जी और आप सब लोग का शुक्रगुजार हूँ कि मैंने ये सुबह सुबह में इतने अच्छे एटमॉस्फेयर में हम आप सबसे जुड़ रहे हैं. मित्रों, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी. आप सबको मालूम होगा कि पूरा अक्टूबर महीना स्तन कैंसर के लिए जागृति लाने के लिए था, लेकिन एक महीने के लिए नहीं, हमेशा के लिए स्तन कैंसर के लिए जागरूक रहना जरूरी है, क्योंकि महिलाओं में होने वाले कैंसर में ब्रेस्ट कैंसर अभी नंबर 1 पे है और दिन ब दिन वो बढ़ता ही जा रहा है. आप में से कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसके रिश्तेदार में या पहचान वाले में कोई ब्रेस्ट कैंसर का पेशेंट नहीं होगा. कैंसर क्यों होता है उसके लिए कोई निश्चित कारण नहीं है, लेकिन ऐसा जरूर साबित हुआ है कि 100 में से 70% में अपनी जो खराब जीवन शैली है, अस्वस्थ जीवन शैली है, वो ही इसके लिए जिम्मेदार है. तो कैंसर बाहर से नहीं आता है, कैंसर अपने शरीर में ही होता है. हर एक के शरीर में कैंसर सेल होते हैं, लेकिन जिसमें इम्यूनिटी कमजोर होती है, इसमें कैंसर उत्पन्न होता है. तो कैंसर तो हम अपने आप पर ही काम करके कैंसर की संभावना कम कर सकते हैं. हमने अभी एक नया शब्द सीखा है कोरोना के समय में, इम्यूनिटी. तो वो इम्यूनिटी क्या है? इम्यूनिटी शरीर में प्रतिकार शक्ति कम होने से एक कैंसर, फक्त कैंसर नहीं होता है, फक्त कोरोना नहीं होता है, लेकिन डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, डिप्रेशन जैसे अनेक रोग इम्यूनिटी कम होने से होती है. अभी आप सबको समझ में आया होगा कि इम्यूनिटी बढ़ाने की क्या जरूरत है. ये शब्द तो हमने सीख लिया, बहुत सारे ने इम्यूनिटी बढ़ाने का उपाय भी सीख लिया है, लेकिन ये खाली कोरोना के काल में ही करने का नहीं है. हमारी इम्यूनिटी हमेशा जीवन भर बढ़ानी है. तो इम्यूनिटी कैसे बढ़ती है? इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए अपनी जीवन शैली तंदुरुस्त रखने की जरूरत है. और जीवन शैली तंदुरुस्त मीन्स आप क्या समझते हैं? पहले तो अच्छा खुराक, अच्छा मीन्स न्यूट्रिटिव खुराक खाना चाहिए, फिर रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, फिर अच्छी सी शांतिदायक नींद आनी चाहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट है कि तनाव मुक्त जीवन जीना चाहिए. तो तनाव मुक्त जीवन जीने के लिए हमको मालूम है कि क्या करना चाहिए, जो आप लोग करते हैं.
तो ये चारों चीज करने से अपनी इम्यूनिटी बढ़ती है और ये इम्यूनिटी हमेशा के लिए जीवन भर के लिए अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने की है और जीवन भर के लिए हमको स्वस्थ जीवन शैली रखने का है। सन 2018 में WHO के आंकड़े के हिसाब से इंडिया में हर 28 महिला में एक को कैंसर होने की संभावना है। आप देख लो कि आपके आसपास 28% तो है ही, 28 लोग है ही, तो आप में से एक को कैंसर होने की संभावना है। जिसके लिए कैंसर होता है, जिसको भी कैंसर होता है, इसमें शहर में रहने वाली महिलाओं को और गांव में रहने वाली महिलाओं को इसमें बहुत फर्क है। शहर में रहने वाली महिलाओं में 3 गुना कैंसर ज्यादा होते हैं। तो ये वो क्यों होता है? क्योंकि अपना स्ट्रेसफुल लाइफ, अपना खुराक, एक्सरसाइज नहीं करने की आदतें, ये सब अपना अच्छा नहीं है जीवन शैली, इसके लिए हम लोग को ऐसा ज्यादा होता है। अभी कैंसर नहीं हुए या कैंसर होने का परिबल से जिसको हम बोलते हैं रिस्क फैक्टर। तो रिस्क फैक्टर क्या होता है कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर के लिए? सबसे पहले ओबेसिटी कम करने से ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंस आप घटा सकते हैं। फिर ज्यादा चर्बी युक्त, ज्यादा कार्बोहाइड्रेट युक्त और ज्यादा मीन्स लो फाइबर का वाला फूड खाने से उसकी संभावना बढ़ती है। प्री मेच्योर प्यूबर्टी मीन्स के 10 साल के पहले पीरियड आना और 50 साल के बाद भी चालू रहने का, मीन्स लंबे अरसे तक पीरियड चालू रहते हैं, तो वो लेडी को भी कैंसर होने की शक्यता बढ़ती है। शरीर में विटामिन की खामी, अल्कोहल और स्मोकिंग, और ये सब रिस्क फैक्टर अपना जो हाई सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है इससे भी संबंधित है। खाली 5 और 10% में आनुवंशिक ये होता है। तो बहनों, अपने को मालूम है कि कैंसर की शक्यता, ब्रेस्ट कैंसर की शक्यता घटाने में हम अपने आप ही कुछ कर सकते हैं। जीवन शैली को ये आज का जो लेक्चर है इसमें जीवन शैली और इम्यूनिटी 2 शब्द आप बराबर याद रखो तो कैंसर होने की शक्यता, ब्लड प्रेशर की, डायबिटीज की, सबकी शक्यता आपको कम हो जाएगी। स्तन कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो रेगुलर स्वयं स्तन की तपास करने की आदत से प्राथमिक अवस्था में उसका निदान होता है और समयसर की सारवार से और जल्दी निदान से कैंसर से मुक्ति भी मिल सकती है। तो अभी क्या होता है कि पहले क्या होता था कि कैंसर मीन्स ये ओल्ड एज का प्रॉब्लम है, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अभी बहुत सारे यंग पेशेंट को भी होता है। तो अपनी काळजी रखने की, अपने शरीर के प्रति, अपने शरीर में होते परिवर्तन के प्रति आप लोग सब जागरूक रहेंगे तो ये कैंसर की बीमारी नहीं होगी, और होगी तो जल्दी भी अच्छी हो जाएगी। क्योंकि रेगुलर स्वयं स्तन तपास से आप कैंसर को अर्ली स्टेज में मीन्स के एकदम छोटा सा गांठ है ऐसा भी वो आप लोग रेगुलर जो स्तन तपास करेंगे तो उससे मालूम पड़ जाता है। 40 साल के बाद डॉक्टर के पास एवरी ईयर जांच कराने की और मेमोग्राफी कराने की हर साल या 2 साल में, वो भी एक इम्पोर्टेंट चीज है जिससे कैंसर डिटेक्ट अर्ली होता है। और कैंसर कैसे अच्छा होता है? जब भी वो अर्ली डिटेक्ट होता है और उसकी ट्रीटमेंट लिया जाती है। तो ये दोनों चीज आपको याद रखने का है और इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है। हर महीने पीरियड के बाद आपको ब्रेस्ट चेकअप कराने का है। एक बार डॉक्टर के पास जाके कैसे ब्रेस्ट चेकअप साइंटिफिकली करने का है वो सीख लेने का है। और आप लोग जो योगा करते हैं वो बहुत प्रशंसनीय बात है, क्योंकि योगा अपने को शारीरिक, मानसिक
सोशल और स्पिरिचुअल, वो सभी हेल्प देते हैं। तो आप सबको योगा करने का जीवन भर चालू रखने का है। और ये 4 चीज जो मैंने बताए, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज, नींद, स्लीप और स्ट्रेस फ्री लाइफ, वो जीने से आप लोग सब कैंसर से नहीं, मतलब अन्य भी रोगों से मुक्ति पा सकते हैं। तो नीतल ने बोला कि मेरे को भी कैंसर हुआ था। हाँ, मेरे को बिल्कुल भी संकोच नहीं होता है कि मेरे को, आप सबको बोलने में, कि मेरे को भी कैंसर हुआ था। तो आप लोग सोचिए कि कैंसर कोई भी उम्र में होती है, किसी को भी होती है, गरीब को भी होती है, पैसे वाले को भी होती है, तो सबको ही केयर रखने की है। और कैंसर में से जब भी प्रसार होते हैं तो कैंसर शब्द से डरने का नहीं है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि कैंसर हुआ, कि कैंसर की पॉसिबिलिटी है, ऐसा सुन के ही हम डर जाते हैं। तो उसमें कोई डरने वाली चीज नहीं है। आप स्वस्थ रहो, आप पॉजिटिविटी रखो। जब भी ट्रीटमेंट शुरू हुई तभी भी पॉजिटिविटी रखो अपना, तो कैंसर को फाइट करने में ये चीज बहुत जरूरी है। और मैंने भी किया है। मैं नहीं बोलती हूँ कि वो सब ट्रीटमेंट बहुत पेनफुल है, लेकिन आपको समझना चाहिए कि ये जो ट्रीटमेंट है वो टेम्पररी है और बाद में हमको अच्छा होने वाला है। डायबिटीज होता है तो पूरी जिंदगी दवाई लेनी पड़ती है, ये तो 4-6 महीने में ट्रीटमेंट के बाद अच्छा हो जाता है। फिर बाद में क्या होता है कि हेलो, वीडियो गया? नहीं नहीं है मैम, है, वी कैन सी। चालू है ना? तो आपकी जो पॉजिटिविटी है, आपका आत्मविश्वास है, वो कैंसर से लड़ने में बहुत ही काम आता है। और वो ट्रीटमेंट जितना ही जरूरी है। तो आपको किसी को भी अगर कैंसर हुआ तो उसमें डरने की कोई बात नहीं है। और जो मैं अच्छी हो गई हूँ, आप सब लोग, मेरी एज तो 77 है, तो 77 में जो मैं लड़ सकती हूँ कैंसर के साथ, तो दूसरे तो सब यंग लोग हैं, इसमें इम्यूनिटी भी ज्यादा है, तो आप क्यों नहीं कर सकेंगे? और आपको अपने को आत्मविश्वास रखने का नहीं है, आपके फैमिली में भी आपको आत्मविश्वास, आप उन लोगों को भी विश्वास देने का है कि मैं अच्छी हो जाऊंगी। ये मैं अच्छी हो जाऊंगी वाला पॉजिटिव अप्रोच ही आपको ट्रीटमेंट में अच्छे होने में और बाद में कैंसर के बाद भी अच्छी जिंदगी जीने में काम आता है। तो मित्रों, आपको जो कुछ पूछने का हो तो पूछ सकते हैं, लेकिन ये मेरा जो मैं एक्सपीरियंस है वो मैं बोलने जाऊं तो वो 1 घंटा हो जाएगा। तो आप सबको याद रखने का है, कैंसर किसी को भी हो सकता है। काळजी रखने से डिटेक्ट भी जल्दी हो जाता है, जल्दी डिटेक्ट होने से, ट्रीटमेंट करने से अच्छा भी हो जाता है। और कैंसर के बाद, ब्रेस्ट कैंसर के बाद आप लंबा भी जिंदगी नॉर्मल जी सकते हैं। वेरी नाइस एंड वेरी वेरी थैंक यू मालती जी, आपने अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया और बहुत अच्छे से हमें जानकारी भी दी है। मैम, एक छोटा सा क्वेश्चन से हम शुरुआत करते हैं। बेसिकली ब्रेस्ट कैंसर के सिम्टम्स क्या रहेंगे? हाउ वुड समवन लाइक नो के उनको शायद ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है? व्हाट आर द डिफरेंट सिम्टम्स इन द ब्रेस्ट, इन द बॉडी ओवरऑल? कुछ चेंजेस आ सकते हैं, ऐसा कुछ भी अगर है तो? देखो, कैंसर है ना, अचानक नहीं होता है। वो कैंसर की जो प्रोसेस होती है वो बहुत साल से शरीर में होती रहती है। तो पहले तो आपको ऐसा थोड़ा वीकनेस होने लगता है, फिर वेट लॉस होता है। और क्या होता है कि ये टाइम में जो 40 to 60 में सभी लेडीज वेट रिडक्शन में पड़ती है कि वेट रिड्यूस। तो कैंसर के लिए वेट रिड्यूस होता है ना, तो भी वो लोग खुश होते हैं कि हाँ अभी मेरा वेट कम होने लगा। लेकिन उसके साथ साथ वो कमजोरी लगने की, कुछ अच्छा नहीं लगने का, वो भी सिम्टम होगा और वेट लॉस होगा, तो आपको फौरन करवाना है। या करवाना चाहिए। फिर आप अगर जो डेली हर महीने रेगुलर आपकी जो ब्रेस्ट की सेल्फ एग्जामिनेशन करते हैं, तो आपको मालूम पड़ेगा कि
ब्रेस्ट में कुछ छोटा सा लंप है, और दूसरी क्या है कि लंप मीन्स गठन, तो वो गठन होती है, वो पेनलेस होती है शुरू में, तो कोई ध्यान नहीं देता है कि वो कैंसर होता है तो दुखता है तो ही डॉक्टर के पास जाने का। तो छोटी सी कुछ भी चेंजेस आपको लगा तो आप डॉक्टर के पास जरूर जाइए। लेकिन ऐसे गठन हुई तो इसमें 80% में नॉर्मल होता है, कैंसर नहीं होता है। लेकिन इसके लिए कुछ भी गठन हुए तो डरने का नहीं है, डॉक्टर के पास जाके दिखा देने का है, जरूर पड़े तो मेमोग्राफी कराने का है। तो अपने को सुर में ये कैंसर मालूम पड़ जाता है। वो जो एक बात यही याद रखने की है कि वो गांठ धीमे धीमे बढ़ती है, इरेगुलर होती है, बाद में पेनफुल होती है, फिर निपल में से रेडिश या पिंकिश डिस्चार्ज होता है। व्हाइट पानी जैसा क्लियर और मिल्क जैसा डिस्चार्ज कैंसर की निशानी नहीं है, लेकिन एकदम पिंक जैसा या रेड जैसा डिस्चार्ज होता है, और इसमें से स्मेल भी आती है। तो वो डिस्चार्ज, तो फिर जब भी एग्जामिन करते हैं तो ब्रेस्ट में गठन है वो तो देखने की है, निपल भी देखने की है, फिर निपल अंदर खींच जाते हैं, मीन्स दोनों ब्रेस्ट आप देखेंगे तो एक ब्रेस्ट थोड़ा सा नीचे ऊपर हो जाता है, वो निपल की जो लेवल है वो भी थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है। तो ये सब आप साइंटिफिक वे से जो ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करेंगे तो आपको मालूम पड़ ही जाएगा। फिर एक्जिला में मीन्स अपने बगल में उधर भी गांठ हो सकती है। तो ये सब पहले से कि वेट रिड्यूस होता है, अपने को कुछ अच्छा नहीं लगता है, फिर थकान लगती है। पहले आप 2 किलोमीटर चलते थे तो फिर 2.5 किलोमीटर में आपको थकान लगती है, तो ये सब होता है। तो ये अपने भगवान ने, नेचर ने ऐसा बनाया है कि ब्रेस्ट हम लोग अप्रोच कर सकते हैं। दूसरे अंग में, पेट में कभी भी कैंसर होता है तो मालूम नहीं पड़ता है, लेकिन ब्रेस्ट में अपना जो ये वी आर ब्लेस्ड के ये हम अपने आप भी चेक कर सकते हैं। तो अपने आप चेक करने की आदत डालने की वो सबसे जरूरी चीज है, बाद में मेमोग्राफी आती है। और मैंने अपना कैंसर भी फर्स्ट स्टेज में मेरी ये आदत से ही मैंने सेल्फ एग्जामिनेशन से ही डायग्नोस किया था। तो आप लोग बोले कि आप तो डॉक्टर है, डॉक्टर नहीं, लेकिन सेल्फ एग्जामिनेशन करने की आदत से मालूम पड़ता है। और बाद में जब भी मैंने देखा कि ये छोटी सी गांठ है, वो फर्स्ट स्टेज में ही था, तो फौरन ही सब जांच करवा के 5th डे में मैंने सर्जरी भी करवाई है। तो कुछ ऐसा लगा तो आप एक डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर जो भी बोले वो करो, इधर से उधर, उधर से उधर मत करो, डॉक्टर के पर विश्वास करो, और ऐसा निश्चित कर दो कि मेरे को कैंसर है या नहीं है तो उसके ट्रीटमेंट करो। और ट्रीटमेंट के टाइम में पॉजिटिविटी रखने का, क्योंकि लेडीज में क्या होता है कि ब्रेस्ट कैंसर में क्या होता है, ब्रेस्ट निकाल देंगे, वो ही सुनने से ही उसका पहला मूड तो ऑफ हो जाता है कि अभी मैं कैसे दिखूंगी, अभी मेरा क्या होगा। लेकिन अभी क्या है कि अर्ली डिटेक्शन करने से ब्रेस्ट भी सेव कर सकते हैं। खाली गांठ निकाल देते हैं और ब्रेस्ट ऐसे ही रखते हैं। अगर ट्यूमर बड़ा है तो प्लास्टिक सर्जरी भी करवा सकते हैं। प्लास्टिक सर्जरी नहीं करवाती की है तो ऐसा उपकरण भी मिलते हैं जो ब्रा के नीचे पहन के आप जैसे थे वैसे ही लग सकते हैं। तो आत्मविश्वास ब्रेस्ट निकालने की है, उससे पहले डरो नहीं। कीमोथेरेपी में बाल चले जाएंगे, इससे कोई डरो नहीं, क्योंकि बाल तो वापस आएगा और जैसा था उससे भी अच्छा आएगा। मेरा अपना भी अनुभव है। आप ज्यादा सुंदर लगेंगे, आपका कॉन्फिडेंस ज्यादा बढ़ेगा, आप ज्यादा अच्छे ह्यूमन बीइंग बनेंगे कैंसर के बाद। तो आप बिल्कुल भी डरो नहीं कि कैंसर हुआ है अभी क्या होगा, बाल चला जाएगा, किसी की बात मत सुनो, ये सब टेम्पररी है, सब अच्छा ही हो जाता है। So nice of you, thank you very much. इसके अलावा हमारे साथ काफी लेडीज और काफी मेरे पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे है, तो अगर आपको भी कोई क्वेश्चन है तो यस, वी हैव द बेस्ट पर्सन ओवर हियर जो हमारे सारे ब्रेस्ट कैंसर के रिलेटेड जो हमारे
मिथ्स भी काफी हमारे दिमाग में होते हैं, तो इट्स बेटर कि हम क्लियर कर दें। ऐसे ही डर के मारे मत जिए। अच्छा है कि हम इनसे सलाह ले ले कि क्या है। अगर आपको कोई डाउटफुल सिचुएशन भी है तो एक बार पूछ लीजिए, क्लियर कर दीजिए। यस फ्रेंड्स, एनीवन यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। मालती जी, यस, वेलकम हमारे इस शो में आने के लिए। वैसे तो हम नारी टू नारायण एपिसोड में आपके साथ पूरा इंटरव्यू किया था और Yes. आपने बहुत डिटेल्स भी दी थी। आप हमारे सूरत के जाने माने वेरी सीनियर डॉक्टर है और इस शो में आप पधारे तो मुझे बहुत खुशी हुई है। मेरे को भी बहुत खुशी हुई वापस आपको मिलने की, और जो भी बहनें जुड़ी हुई है उसको भी मिलने की। Yes. Yes friends, do we have any other questions over here? कोई भी अगर आपको questions, doubts है तो वो आप पूछ सकते हैं। Friends, आप you can raise your hands. Yes, Sonia ji. Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग। Thank you so much for such a lovely guidance. Ma'am, I have one query. या मेरा केस बहुत अर्ली मेनोपॉज या एट द एज ऑफ 32 हम्म टर्म्स बंद हो गए थे। या आप मैंने एक दो बार पेप टेस्ट कराया है। आई रियली वांट टू नो कि हाउ ऑफन वी शुड गेट इट डन। सी आप हॉर्मोन्स पे हैं? नहीं, नथिंग। आप एक्स्ट्रा हॉर्मोन्स लेते हैं? नहीं, कुछ नहीं नहीं। लेती मैम मैं। हाँ, अगर हॉर्मोन्स लेते हैं तो मेमोग्राफी भी रेगुलर कराना चाहिए। क्योंकि जो ब्रेस्ट कैंसर है वो हॉर्मोन्स से, अपने स्त्री में होने वाले हॉर्मोन्स के चेंजेस के लिए, इसके लिए होता है। हाँ। तो हॉर्मोन्स नहीं लेती है तो कोई बात नहीं है। कोई हार्मोन लेकिन आपको भी रेगुलर ये सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन जरूर करने का है। और 35 के बाद आप रेगुलर ब्लड चेकअप भी कराओ और मेमोग्राफी भी कराओ और अपने आप भी चेकअप कराओ। स्त्रियों में है ना 5 कैंसर है। एक ओवरी का है, गर्भाशय का है, गर्भाशय के मुख का है, ब्रेस्ट का है। तो ये सब कैंसर के लिए रेगुलर चेकअप करवाना जरूरी है। तो कोई भी कैंसर अर्ली डेज में हम डिटेक्ट कर सकते हैं। तो आपको जो सर्वाइकल कैंसर है ना, इसके लिए पेप्स टेस्ट करवाते हैं। ओके। तो आपको ऐसे 35 इयर्स के बाद हर साल कराओ तो अच्छा है। अगर 10 बार नेगेटिव आया तो आप छोड़ सकते हैं। ओके। बाद में फ्रिक्वेंटली नहीं कराने का। लेकिन ये सर्वाइकल कैंसर भी कभी भी हो सकता है। मैंने बोला ना कि मेरे को कैंसर 75 इयर्स में हुआ। मैंने थाउजेंड्स ऑफ लेडीज को कैसे ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करने का सिखाया था। मेमोग्राफी भी करवाई थी। 70 इयर्स में मैंने छोड़ दिया कि अभी क्या होने वाला है, मैं तो एकदम हेल्दी हूँ। तो भी हो सकता है। तो किसी को भी ऐसा नहीं कि ये तो मेरे को तो हो ही नहीं सकता है, सबको हो सकता है। और सर्वाइकल जो पेप स्मीयर है वो रेगुलरली कराने का है। और पेप स्मीयर में है ना 2 चीज है। एक ये सिंपल होती है और एक दूसरी लिक्विड बेस है। वो डेवलप मीन्स अभी डेवलप हुई है। तो आप अगर करा सको तो वो थोड़ा सा कॉस्टली होता है। तो वो पेप्स लिक्विड बेस पेप्स टेस्ट, तो वो कराने से क्या होता है कि एवरी 5th ईयर भी कराओ तो आप चलेगा। मैम ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है, बिकॉज टच वुड है अभी तक तो सब एवरीथिंग इज गोइंग फाइन। इट इज जस्ट कि मेरे टर्म्स बंद हुए 10 इयर्स हो गए, 10 to 12 इयर्स हो गए। I'm 40. Should I get it checked every year now also? हाँ। Okay. मैं बोलती हूँ ना कि मैंने 70 साल में छोड़ दिया, फिर बाद में 75 साल में मेरे को हुआ। Alright, thank you ma'am, thank you so much. और सर्वाइकल के और दूसरा क्या है कि आपका प्रीमेच्योर मेनोपॉज है ना, तो आपको कैल्शियम लेना भी जरूरी है। बोन के लिए एक्सरसाइज करने की भी जरूरत है। और खाली योगा नहीं,
आपको एरोबिक एक्सरसाइज करने की भी जरूरत है। इससे बोन भी मजबूत होता है, क्योंकि आपका एस्ट्रोजन लेवल कम हो गया है तो आपको ऑस्टियोपोरोसिस होने का भी चांसेस है। तो आपको एक्सरसाइज रेगुलर करने की है, अच्छा डाइट खाने का है, और मैंने बोला है खुश रहने का है, पॉजिटिव रहने का है। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। ओके। या चंद्रकांत जी, पूछो। ये माइनर उम्र में भी हो सकता है, एज में? माइनर एज में भी हो सकता है। इसके सिम्टम्स, कैंसर के सिम्टम्स हो सकते हैं। माइनर एज में नहीं होता है, वो 20 इयर्स के बाद सब अपनी लड़की को सिखाना चाहिए कि आप ब्रेस्ट के प्रति थोड़ा सा जागरूक रहो। अच्छा। और उसमें भी अभी अभी है ना, क्या है, 25 इयर्स 28 इयर्स में भी कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट आते और हैं। ज्यादातर डरने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन 20 के पहले नहीं आती है। नहीं है, और ज्यादातर 50-60 के बाद ही आती है। हाँ, 40, बिटवीन 40 एंड 60। बराबर। अभी कल एक हमारे रिलेटिव ने ब्रेस्ट कैंसर का ऑपरेशन कराया अहमदाबाद में। वो कल ही करवाया। हाँ, 72 हाँ जी। years। 72 इयर्स, 72 इयर्स। हाँ, वो ही बोलती हूँ कि कभी भी होता है, लेकिन 20 के पहले भी सकते हैं, पॉसिबिलिटी कम है। बराबर। ओके। ओके, थैंक यू डॉक्टर। आपके जो रिलेटिव है वो सूरत के हैं कि अहमदाबाद के हाँ, हैं? सूरत के। सूरत के। हाँ। तो वो आ जाए ना, फिर मेरे को मिलने का बोलना। ओके। अभी है ना, ब्रेस्ट कैंसर वाले या कोई भी कैंसर वाले पेशेंट को क्या होता है कि डॉक्टर, इतने सारे पेशेंट होते हैं कि उनके साथ बातें करने का, क्या खाने का, क्या करने का, वो उनको डर में, उनके पास बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। लेकिन जॉब अच्छे से नहीं देते, फिर वो लोग क्या करते हैं, व्हाट्सएप पे पढ़ते हैं, कोई फ्रेंड की बात सुनते हैं, उनको बोलना मेरे को मिले। हमने अभी एक संस्था चालू की है, संजीवनी लाइफ बियॉन्ड कैंसर। तो कैंसर होने के बाद भी उनको सपोर्ट देना, उनके फैमिली को मानसिक सपोर्ट देना, वो बहुत जरूरी है कि जो पहले जैसी नॉर्मल हो जाए। पर सूरत तो में है आप क्या उसको, हॉस्पिटल? सूरत में वो हॉस्पिटल नहीं है, ये हम एनजीओ का एक काम करते हैं। लेकिन इट इज लाइक आवर क्लब, हमारी जैसे क्लब है ना, वैसा उनका क्लब है, लेकिन क्लब है। हम वो लोग सारे क्या कैंसर के जो है उन सबका हम लोग, दे देना। हाँ, हम लोग क्या करते हैं कि जो जिसको कैंसर हो गया है, ब्रेस्ट कैंसर या कोई भी कैंसर, वो अच्छे हो जाते हैं, बाद में उन लोगों की लाइफ अच्छी बनाने के लिए करते हैं। ओके, थैंक यू। तो वो इस सर्वाइवर को ही हम ट्रेन करते हैं कि दूसरे पेशेंट को गाइड करो और उनको काउंसलिंग करो। ऐसी एक्टिविटी हम करते हैं। मैडम, कॉन्टेक्ट नंबर दे देना। हाँ, मित्तल के पास ले लेना, जरूर ले लेना। श्योर श्योर। क्योंकि अभी मेरा सब कंसंट्रेशन कैंसर के बाद में क्या करने का, लाइफ बियॉन्ड कैंसर क्या होती है, वो हम समझाते हैं हम लोगों को। थैंक यू। और आपके कोई किसी को कैंसर अच्छा हो गया है, उन लोगों को भी बोलो, तो मैं उन लोगों को भी ट्रेन कर सकती हूँ कि दूसरे कैंसर के पेशेंट को कैसे संभालने का है। Sure, ma'am. We do have a lot of such people in our club, and this was something nice that I knew. So they can also counsel the other they can people. contact me, they can work with me, they can have help from me mentally. बहुत ही अच्छी, आपने बहुत अच्छा एक ये जो ग्रुप स्टार्ट किया है, इट इज समथिंग वेरी नाइस एंड वेरी अप्रिशिएबल थिंग कि आपने इतनी अच्छी चीज आपने की है। इट इज लाइक अ ब्लेसिंग फॉर द होल सोसाइटी। हाँ अंजलि जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? हेलो दीदी, नारायण डॉक्टर जी। दीदी, मेरा क्वेश्चन ब्रेस्ट कैंसर से नहीं है, बल्कि एक छोटा सा ही क्वेश्चन है। जैसे हमारा मोनोपॉज के बाद लोग बोलते हैं कि गर्भाशय की थैली निकालना जरूरी होता है, क्या ये जरूरी है? अगर कुछ भी तकलीफ नहीं है तो गर्भाशय की थैली कितना निकालना चाहिए, नहीं निकालना चाहिए? बिल्कुल नहीं। देखो, बच्चेदानी कब निकालने की है कि इसमें कुछ गांठ हो जाती है, इसमें कुछ बड़ी चांदी हो जाती है, उससे आपको कोई तकलीफ होती है और डॉक्टर बोलते हैं तो।
मेनोपॉज के पहले या मेनोपॉज के बाद बच्चेदानी निकालने की जरूरत होती है तो ही निकालने की, क्योंकि बच्चेदानी के साथ अपना बीजांड होता है, बीजांड में से हार्मोन्स होता है। बच्चेदानी ऐसे ही निकाल मीन्स अभी बच्चे पैदा करने का काम हो गया, अभी झंझट नहीं चाहिए, ऐसा करके भी जो निकालते हैं ना उसको भी प्रीमेच्योर मेनोपॉज आ जाते हैं। और मेनोपॉज के बाद क्यों निकालने का, आप लोग जो काम नहीं है तो अपेंडिक्स भी हम लोग ऐसे ऐसे नहीं निकालते, तकलीफ होती है तो निकालते, तो यूट्रस क्यों निकाल देने का? ओके। और बिल्कुल भी नहीं निकालने का, सिवाय क्या अपने को कुछ प्रॉब्लम हुआ। ओके। और एक छोटा था कि जो कैल्शियम लेने बोलते हैं आफ्टर मोनोपॉज के बाद, मेरे को 6-7 साल हो गया मोनोपॉज का पीरियड चले गया है, तो बोलते हैं कैल्शियम 3 मंथ्स लेना चाहिए, 3 मंथ लेके वापस 3 मंथ छोड़ो, वापस क्यों? चालू करो, या देखो कंटिन्यूशन में लेना है? देखो कैल्शियम अपने को डाइट में से भी बहुत ज्यादा मिलता है, लेकिन हम लोग ऐसा डाइट नहीं खाते हैं। सॉरी। ऐसा ग्रीन वेजिटेबल्स रेगुलर खाने का, तिल खाने का, फिर दूध पीने का। दूध पीने में अभी कंट्रोवर्सी है कि कोई बोलते हैं दूध पियो नहीं पियो, तो अब आप लोग कैल्शियम वाले फूड खाते हैं तो बहुत रिप्लेसमेंट की जरूरत नहीं है, लेकिन हम लोग इंडिया में कोई भी इंक्लूडिंग माई सेल्फ पूरा कैल्शियम मिले खुराक में से ऐसा खुराक नहीं लेते हैं, तो कैल्शियम लेना जरूरी है और हमेशा लेने का, 3 महीने बंद करने की कोई जरूरत नहीं है। और ऐसा 1000 मिलीग्राम में आप लो डेली, तो इससे कुछ पथरी बथरी भी नहीं होती है, कभी किसी को कॉन्स्टिपेशन होता है तो उसके लिए वो ब्रांड बदल देने से अच्छा हो जाता है। और कैल्शियम लेने का हमेशा जरूर इसके लिए है कि अपना फूड में से हम लोग कंप्लीट कैल्शियम नहीं मिला सकते, अगर मिल सकता है तो आप नहीं लो तो भी चलता है। ओके। और एक था कि कैल्शियम के साथ विटामिन D3 लेना डी जरूरी है, लेना जरूरी है, हाँ। तभी ही कैल्शियम वो वर्कआउट करेगा, ऐसा हमने या सुना है, लेकिन श्योर विटामिन नहीं है, विदाउट डॉक्टर को पूछे बिना समझ में नहीं आता है ना, इसलिए। हाँ, विटामिन डी है ना अपने को ऐसे नेचुरल भी मिलता है सूर्य के किरण में से, अल्ट्रावायलेट रेज जो अपने स्किन पे पड़ता है इससे नेचुरल विटामिन डी भी मिलते हैं। लेकिन हम लोग सब एसी में काम करते हैं, गर्मी में जाते नहीं, जाते हैं तो वो क्रीम लगा के जाते हैं, तो इससे विटामिन डी की कमी हम में भी हो जाती है। और कैल्शियम का एब्सॉर्प्शन होने में विटामिन डी, विटामिन सी, प्रोटीन सब साथ में लेना चाहिए। तो मैंने बोला था कि अच्छा फूड लेना सबसे जरूरी है। जी बहुत बहुत थैंक अच्छी यू बात सो आपने मच डॉक्टर, बताई। थैंक यू सो मच। हेलो हाँ जी मैडम, अपन अपन अच्छा फूड तो खाते हैं, फिर भी कैल्शियम का टेबलेट लेने का जरूरी है आफ्टर द एज ऑफ 70? या अभी अभी क्या होता है कि कैल्शियम जो यंग एज में एब्सॉर्ब होता है ना, वो ओल्ड एज में एब्सॉर्ब नहीं होता है ज्यादा, मीन्स के सब वीक हो जाता है, हाथ पैर कान नाक सब, तो इंटेस्टाइन भी वीक हो जाते हैं। तो कैल्शियम लेने का तो है, लेकिन एब्सॉर्ब कितना हुआ वो अपने को मालूम नहीं है, और फूड में से इनफ कैल्शियम मिलता है कि नहीं वो भी अपने को मालूम नहीं है। तो अच्छा फूड लो और कैल्शियम भी लो, और अगर आपको अच्छा है कि विटामिन डी भी सब ठीक है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो कैल्शियम नहीं लो तो भी चलता है, कभी कभी लो तो भी चलता है, लेकिन अपना फूड पे बराबर ध्यान रखो। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच मैम। देयर इज अ क्वेश्चन अबाउट फाइब्रॉइड, किसी ने पूछा है, तो फाइब्रॉइड के बारे में भी आप थोड़ा सा अगर कुछ शेयर कर सकते हैं तो इट वुड बी ग्रेट। वो फाइब्रॉइड मीन्स जो बच्चेदानी में मस्कुलर टिश्यू है ना, इसमें गांठ होती है, और ये जो फाइब्रॉइड होने की पॉसिबिलिटी किस में होती है, जिसको बच्चे नहीं होते हैं, मीन्स आइडल यूट्रस होता है, जिसको 2 बच्चे में बहुत सारा गैप होता है, और ऐसे भी होता है। तो जिसको पहले क्या था, फाइब्रॉइड का इंसिडेंस बहुत कम था, क्योंकि अपने मम्मी को दादी को 4-4 5-5 डिलीवरी आती थी, तो यूट्रस आइडल नहीं बैठता था, तो इसके लिए फाइब्रॉइड नहीं होता था। अभी फाइब्रॉइड इसके लिए होता है कि कभी कोई शादी ही नहीं करते तो लेट बच्चा आता है तो एक ही आता
दिखता है। तो इसकी वजह से और हार्मोन्स में ऐसे अलग अलग चेंजेस होने से फाइब्रॉइड होता है। और फाइब्रॉइड कैंसर नहीं है, और छोटा फाइब्रॉइड होता है, मीन्स फाइब्रॉइड सोनोग्राफी करवा के किसी ने बोल दिया कि ये फाइब्रॉइड है आपको, तो बच्चेदानी निकालने की जरूरत नहीं है। लेकिन फाइब्रॉइड अगर बढ़ता है, फाइब्रॉइड मीन्स ये जो गांठ है वो बढ़ती है, अगर आपको ब्लीडिंग में बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होता है या आपको पेट में दुखता है, ऐसा कुछ फाइब्रॉइड की वजह से होगा, बड़ा फाइब्रॉइड होगा तो ही बच्चेदानी निकालनी पड़ती है। जो छोटे छोटे फाइब्रॉइड होते हैं जिससे कोई आपको तकलीफ नहीं है, वो यूट्रस निकालने की जरूरत नहीं है। यूट्रस निकालने का मीन्स आर्टिफिशियल मेनोपॉज लाने का, बराबर, तो वो नई चीज करने के। लेकिन जरूरत होगी तो डॉक्टर बोलेंगे आपको कभी कि आपको किसी को आगे के भाग में बड़ा फाइब्रॉइड होता है तो यूरिन करने में भी प्रॉब्लम होता है, तो ऐसा कुछ हुआ तो फाइब्रॉइड निकाल सकते हैं, बच्चे नहीं निकाल सकते हैं। खाली किसी को यंग एज में हुआ तो खाली फाइब्रॉइड का ऑपरेशन भी करा सकते हैं, यूट्रस रख सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। आई थिंक हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर ऑलरेडी मालती जी ने दे दिए हैं। सो मेरी तरफ से और बाकी सब मेरे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उन सब की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आई थिंक समवन इज या महालक्ष्मी जी, या बोलिए। यस मैम, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। इट्स डाउट है, इसमें नहीं बोलते। ऑपरेशन हुआ था बट डिलीवरी के बाद है ना मुझे फीडिंग नहीं दिया, मीन बच्चे को, उसकी वजह से कुछ कैंसर हो सकता है क्या फ्यूचर में? नहीं, ऐसा नहीं है। देखो ये है ना, सब रिस्क फैक्टर है। मैंने क्यों बताया कि अभी लोग ब्रेस्ट फीडिंग नहीं देते हैं, लेकिन ब्रेस्ट फीडिंग 1 साल देने से ब्रेस्ट वो स्तन कैंसर का इंसिडेंस कम होता है। ऐसे तो बहुत सारे फैक्टर है और अपने को मालूम नहीं है कि क्यों होता है, तो जितने भी मालूम है फैक्टर्स वो अवॉइड करना चाहिए। लेकिन ब्रेस्ट फीडिंग नहीं दिया तो कैंसर होगा ही, ऐसा नहीं है। आपकी अगर लाइफस्टाइल अच्छी है, आपका वजन बहुत ज्यादा नहीं है, दूसरे फैक्टर्स भी आप में नहीं है, फैमिली के हिस्ट्री नहीं है, तो आपको ऐसा एक कारण से कैंसर होगा ऐसा नहीं है। लेकिन इट इज वन ऑफ द रीजंस, वन ऑफ द फैक्टर, रिस्क फैक्टर। तो इसके लिए मैं बोलती हूँ कि ऐसे 20, देखो आइडियल एज फॉर मैरिंग इज 20 to 23। तो इसमें तो कोई भी अभी शादी नहीं करते हैं, सब पढ़ते हैं, करियर बनाते हैं, तो 30 इयर्स हो जाते हैं। फिर बाद में सर्विस में जाने का है, डॉक्टर होगा तो प्रैक्टिस में जाने का है, तो वो बच्चे वाला जो टाइम है वो किसी को भी मिलता ही नहीं। तो ये कैंसर अवॉइड करने के लिए अपनी जिंदगी भी बाद में अच्छी तरह से जाए, इसके लिए भी टाइम सर ऐसा शादी करने का, टाइम सर बच्चा लाने का, फिर अपने करियर बनाने का, ऐसा करो तो अच्छा है। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। या फ्रेंड्स, और हमारा कोई क्वेश्चन बाकी है किसी का? या आई थिंक ऑलमोस्ट अपने जो स्टार्टिंग के लेक्चर में ही सारे हमारे डाउट्स क्लियर कर दिए हैं। बहुत अच्छी जानकारी आज हमारे साथ आपने शेयर की है, आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। और आप जो क्लब चला रहे हैं, जो ग्रुप चला रहे हैं, उसमें मेरे काफी फ्रेंड्स ऐसे हैं जो कैंसर सर्वाइवल है, तो मैं उनको जरूर से ये रिफर सबको करूंगा। बोलो कि मैं मेरे कांटेक्ट करें, क्योंकि वो लोग को कुछ सोशल सर्विस करने की हो तो भी मैं गाइड कर सकती हूँ। हाँ जी, इसके लिए हम लोग ट्रेन करते हैं, इसके लिए हम सर्टिफाइड कोर्स कराते हैं कैंसर केयर गिवर का, तो उन लोगों की जिंदगी में भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा और दूसरे कैंसर के पेशेंट को भी हम मदद कर सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही सुंदर से बहुत अच्छी सारी हमें टिप्स दी है। थैंक यू वेरी वेरी मच। एंड it was great and it a big pleasure having you over here with all my Surya Namaskar participants. And we are glad to share with you that today we have completed the 13th day of 21 Surya Namaskar challenge.
सो हम 21 डेज का हमारा सूर्य नमस्कार चैलेंज कंप्लीट करने के बाद हम 51 सूर्य डेज चैलेंज भी लेने वाले हैं. So yes, I do have the whole chart prepared कैसे हम 51 पे जाएंगे क्या है. तो सब आप लोग भी फ्रेंड्स हमारे साथ जुड़े रहिए, और भी किसी का अगर मिस हो गया है तो उनको अभी ज्वाइन करवा दीजिए, क्योंकि आगे सीधा 51 पे जंप करना थोड़ा सा उनके लिए मुश्किल हो जाएगा. So yeah, thank you everyone, and see you tomorrow morning, I think. Bye bye. Thank you Mittal, और congratulations for such an activity. और आपने मेरा सुबह सुबह में समय सुधार दिया, इसके लिए थैंक यू. आप सबको मिलने के बाद मेरे को बहुत आनंद हुआ. कभी भी जरूरत मिली तो मेरे को फोन पर कांटेक्ट कर सकते हैं. थैंक यू डॉक्टर मालती जी. थैंक यू. Thank you, doctor. Thank you. Thank you. And sorry for late joining. नहीं मैम, प्लीज no डोंट से problem. सॉरी. आपने इतने आप आए हमारे लिए, बस वही बहुत है. Actually, I was under impression I have to join at 8:30, so I was taking breakfast at that time. No problem. So we are sorry, Okay. हमने आपके ब्रेकफास्ट में नहीं कोई बीच में बात नहीं, करवा कोई बात दिया. नहीं. मैंने बहुत Thank अच्छा you. मार्गदर्शन दिया सभी को. Thank you. थैंक यू. Thank you, doctor. Thank you. Thank you. Thank you. Bye. 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 So friends, bye bye, and see